हाँ भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अ न्यू जूम सेशन। तो गाइस, आप लोगों का सभी का स्वागत है एक और जूम सेशन में। तो आज भी वही है जो हर बार होता है, नील भाई सिखाएंगे हमारे और आप लोग सीखना। और नीचे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा तुम्हें, जिसको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है। सीधा व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और हफ्ते में 2 या 3 सेशन होते रहते हैं, तो आप लोगों को अगर सीखना हो तो आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो गोल्ड खोलूं? गोल्ड खोलो भाई, गोल्ड का डेली, पहले वीकली खोलो फिर डेली। यार RSI हटो रे। मैनिपुलेशन का भंडारा, मैं कहता हूँ इसको, मैनिपुलेशन का भंडारा। हाँ, ऐसा क्या मैनिपुलेशन तो वीकली? होता नहीं है। आई डोंट से इट्स एज अ मैनिपुलेशन बिकॉज देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मैनिपुलेशन इन द मार्केट। आई नेवर एवर सॉ एनी टाइप्स ऑफ दिस। पीपल से फेक आउट, पीपल से दिस, पीपल से दैट। नहीं, मैं कभी इन सब चीजों पर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। राइट? तो होता सो क्या है? everything has its own reason. तो उसी हिसाब से वो घूमेगा। अरे ऐसा नहीं होता यार। दे नाउ बैंक्स का काम है, जब वो एंटर करेंगे, इट्स फॉर योर लॉस इन द एंड। रिटेलर्स को उड़ाने के लिए वो लोग जो स्पाइक देते हैं, दैट्स अ पंप। नाउ दैट पंप कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय अ रिटेल इन्वेस्टर। ओके ठीक है? ओके। Above bank you have Rothschilds. Now Rothschilds controls all those banks who are trading there. रॉकचाइल्ड्स Morgan को Stanley, आपने बताया था मेरे HSBC. को। Yeah, Rothschilds is a family having the net worth of $200 billion, the total net worth. And there is a rumor that yes, they are controlling the market, but according to me, no, they are not controlling the market. Actually, they are just making money out of the market. Okay? So, and I don't think this is the market which they are handling right now. ये इनका चार्ट नहीं है. So they are not into this MT5 and MT4 कि वो यहाँ पे बैठे रहेंगे और यहाँ पे ट्रेड करेंगे. Nor banks will be doing all that. उनके पास भी MT4, MT5 नहीं है. Nor Rothschilds, nor Morgan Stanley, nor HSBC, no one. ठीक है? उनका सॉफ्टवेयर पूरा अलग है. And the fees of that software is around 40,000 rupees. No, not 40,000 rupees. It's more than 40. I think around 1 lakh or 2 lakh rupees per month. उनका मेंटेनेंस जो सॉफ्टवेयर है उसका मंथली फीस ही इतना है. ठीक है? तो the chart, the software which they are using, I think Ref is also using that. Ref Brain is also using that software. He gave an interview regarding that, and so basically it's not in the end, it's not our concern. That's completely fine. Okay, so I told you as okay, the weekly chart. वेलकम एडी, वेलकम। If I see the weekly chart, I don't have any damn. इसको डेली पे डाल दो. डेली पे डाल दो. एक मिनट। Now what do you have is we have the unfair value price where the buyers were left. Buyers didn't get a chance to enter the market. Sellers. There is an unfair value gap. I can see towards the upside. Whereas if you see gold in daily time frame, yes, it is giving you a change of character. Just look at the chart. It's giving you the change of character towards the upside. Overall trend up. Market came down, grabbed some liquidity. Again, it tried. It failed. It went up. So now what you have is, this is the unfair value gap. Again, it will enter here. Okay. Again, once it, they will grab all the, they will kill all the buyers first, and then boom. It's a straight up. It's a straight up. देखो। And the thing is, this is nothing but a change of character. This is a change of character, right? This is a change of character. Because, why it is a change of character? Because the market came like this. It's going like this. Now again, it is going here. So this is what we call it as a change of character. Yes. And then you will get a break of structure. Yes. So what you do is, you will be trading on making of that break of structure. So gold is a buy for tomorrow. Today I expect a gold for a long sell. But yeah, in H4 also I got a confirmation regarding the sell. But I won't be entering because tomorrow we have NFP.
So better to collect and make some money and get ready for NFP and let the non-farm payroll. Someone is asking about NFP. You'll be doing that. Just hold on a second. I'm getting a call. मैं call attend कर लेता हूँ. Sambhav, are you asking for NFP? हाँ पूछा था मैंने Okay. कि कल है ना भैया ने मैसेज डाला था कि टुमारो इज एनएफपी वी हैव टू रेडी Yes. अभी हफ्ता खत्म हो गया यार, कल का सिर्फ फ्राइडे बचा है। हाँ तो यार क्या नाम है, मंथ के फर्स्ट फ्राइडे आता है ना, उसी में एनएफपी होता है। अरे यार ये हफ्ता भी खत्म हो गया यार। एडी हेलो एडी भाई तुम Hello. कैसे हो? हाउ आर यू एडी? Hello. Hello. आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है. AM. Okay, so once and the other thing, silver level, I missed that level. यार यही प्रॉब्लम होती है पता है, because I was so much into this gold last week that I just forgot to map out my silver and just see that silver what has happened. Silver खोलो, देखो तुम्हें पता चलेगा silver ने क्या किया है. Silver I missed a very good entry. Just see brother. See? Silver, I told you, see this. Oh, it tested this shit. I missed this. I really missed this. That's completely fine, but I cannot do anything. Now what you have is whenever they create a whipsaw, it's a whipsaw कहते हैं, right? Whipsaw is nothing but a wick. This is a wick. Okay, this is the pressure of buyers or the sellers. So ये क्या create करता है? ये इसके नीचे जाएगा क्योंकि लोगों के एसएल यहाँ पे लगे होते हैं. यहाँ पे लोगों के एसएल है. बहुत क्लियर है ये चार्ट बहुत ज्यादा क्लियर है. यहाँ पे लोगों के एसएल लगे, ग्रैब करिए ना इसने. ये डिमांड से उठेगा और ये डिमांड से उठ जाएगा और उठेगा सीधा इसका नेक्स्ट स्टॉप इसके ऊपर. ये यहाँ कहीं जाके होवर करेगा, अब इनको भी खा जाएगा. तो ये प्लानिंग पे हम बैठे हुए हैं. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने ये चार्ट को देखा, ये कल मुझे पता चला कि मैंने कितनी अच्छी एंट्री मिस की है, क्योंकि ये दोनों चार्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों ने एक ही डिमांड ऐसे क्रिएट किया और एक ही तरह वो पैरेलल चल रहे हैं. दोनों के दोनों चार्ट अगर तुम देखोगे ना तो पैरेलल चल रहा है. एक्चुअली ये होता नहीं है. व्हेन यू बाय गोल्ड यू आर सपोज टू सेल सिल्वर. ये हेजिंग है. हेज फंड्स क्या करता है? मेटल्स का प्रोपोर्शन ये डिफाइन करता है कि व्हेन यू आर बाइंग गोल्ड यू मस्ट सेल सिल्वर. क्यों? क्योंकि जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा सिल्वर का प्राइस नीचे आएगा, सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा. एंड राइट नाउ ये इट इज फॉर द इन्वेस्टर्स ना. अभी मैं गोल्ड खरीदूं, मैंने 40,000 पे गोल्ड खरीदा, ठीक है, और मैंने 4,000 पे सिल्वर खरीदा. 40,000 पर 10 ग्राम्स एंड 4,000 पर 10 ग्राम. सिल्वर का प्राइस हाफ भी नहीं है, 10% ही है ना गोल्ड का. तो दो मेटल एक साथ एक ही जगह ऊपर नहीं जाएंगे ना. अभी जैसे क्रूड ऑयल है, जैसे मैं बोलूं कि भाई क्रूड ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर उसके साथ तुम एलपीजी और सीएनजी का प्राइस बढ़ाओगे तो कंज्यूमर कहां जाएगा? तो उस वजह से एलपीजी का प्राइस कम होता है, गैसोलीन का गैस का ये जो होता है वो प्राइस कम रहता है गैस का, और पेट्रोल का प्राइस ऊपर होता है. और जब पेट्रोल का प्राइस नीचे आता है गैस का प्राइस ऊपर जाता है. जैसे चाय और कॉफी, चाय का प्राइस ज्यादा है तो कॉफी का प्राइस हमेशा कम रहता है. अभी आज क्या है? चाय का प्राइस कम है, कॉफी सबसे महंगा है. कॉफी सबसे महंगा है अभी, तुम्हें पता हो. हाँ कॉफी महंगा है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज दैट्स अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है. ये केस ऐसा है, ठीक है. समझ गया. सो सिल्वर को गिरना है, गोल्ड को उठना है.
अभी भले ये पैरेलल चल रहा है, सिल्वर को गिरना है, गोल्ड को उठना है, ठीक है। तो अगर उसने कल वो पॉइंट पे आए बिना ही उठ गया तो ये प्रॉब्लम है। ओके So you can just expect market to come down and then go up. अब जो स्ट्रक्चर बना ही नहीं है उसको मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि भाई वो नीचे ही आएगा, मैं बोल रहा हूं इसीलिए नीचे आएगा, नहीं। हमने स्ट्रक्चर जब बनेगा तब हम श्योर है कि हम बाई करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर उसके लिए बनना जरूरी है। स्ट्रक्चर नहीं बना है, नहीं बना। राइट नाउ यू हैव जस्ट वन थिंग एंड दैट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसको लाइन चार्ट पे देखोगे, इफ यू सी ऑन द लाइन चार्ट, ये लेवल टूटा ही नहीं है। जस्ट ओपन अप दिस लाइन चार्ट, ये लेवल टूटा ही नहीं है, देख रहे हो? सो व्हाट इज दिस? हाउ विल यू डिफाइन इट? इसी लेवल पे अभी भी होवर कर रहा है, जस्ट लुक एट इट, ये इसी लेवल पे अभी भी होवर कर रहा है, मेकिंग अ डबल बॉटम। ठीक है। डबल बॉटम जो भी कहे, ये कोई हेड एंड शोल्डर भी बोल देगा ना। हाँ। लेफ्ट, equal low, राइट और नीचे। equal So- low must be Yes, taken. Yeah. That's ठीक है। equal low must So- be taken. Yes, this is liquidity. Yo, equal lows, yes, exactly. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, once if the structure has not been made, you don't try your, that's why I tell you every time, right? You don't push your mind towards the making of that structure. No, you don't need to do that. Just let it make a structure, then you define your trade. If you have a definition, you have a answer, you have a profit. But if you don't have a definition, you have a loss. You'll just wipe out your account. It's as simple as that. So it's not so a rocket science or something like that, but try to train your mind accordingly. Everything has its own reasons. Everything has its own definition. If the definition is correct, the trade is correct. So if it is making a structure, you are waiting for the structure to be made. You have a definition. You can define that structure. So after defining that structure, you take your entry point. You take your TPs or exit manually, whatsoever you're doing by yourself. All right. Now, yesterday I sold Nasdaq. No one understood that trade, but that was a clear sell. See what happened yesterday night. It just drained, and right now it is just trying to push, but it won't be able to go much up. Again, it will go down. I'm just waiting for my level. Once I get a confirmation, I'll go again with a sell in Nasdaq. Nasdaq is US 30 or US US 30 100? नहीं है वो, US 100 है। Okay, US 100. अब मेरे में US टेक है। हाँ, यूएस टेक ही है ऐसी मार्केट में। ये देखो, ये है US 100. नहीं, तो ये यूके का इंडेक्स है भाई। Okay, नहीं वो US 100 ही है वो। US. ये यूके का भी इंडेक्स ऐसा ही है। ये है UK का तो Nasdaq 100। जर्मन 30 है, जर्मन 30। They have German 30। ये है भैया। GER जर्मन 30। एक मिनट यार, रुको। एक मिनट रुक जाओ। करंट प्राइस हाँ? 15156। H4 देखो, H4 ये फ्यूचर है। लो, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। देवांश तू बोल। एक मिनट जस्ट Nasdaq 100 Nasdaq 100 बस। चेक, लेट मी जस्ट चेक ना। कल रात ही को तो ट्रेड किया है। US 30 100 US 30 खोलो, US 30 खोलो, तुम छोड़ दो ये सब। US 30 है वो। कल वो अरे मत- नास्दाक नहीं था, वो US 30 था। ये लो, या ये भी आपने वो जोन बस। ड्रॉ करवाया था मेरे से, देखो जो आपने कहा था वो का वही हुआ। डाउ जोन्स, अबे डाउ जोन्स मतलब डाउ जोन्स। हाँ हाँ, डाउ जोन्स से आता है US 30 में। डाउ जोन्स, अबे भाई ये कहाँ कौन सा नशा करके बैठे हो? रुको एक मिनट, नहीं हो सकता। अरे होल्ड ये इट, है। होल्ड। अरे होल्ड इट यार, लेट मी जस्ट चेक ना। यूएस 35 30 to तो डाउ जोन्स ही आता है। हाँ वही है। हाँ, यूएस 30 डाउ जोन्स आता है।
सही है। मैं कह रहा हूँ ना, आपने वो ये जोन डलवाया था मेरे से, ये देख लो। हाँ ये जोन डलवाया था मैंने, आई रिमेम्बर दैट। So, okay, you have what right now here? Yeah, again, it is trying to break this level. अब ये भैया क्या कर मेरा रहा है? Just एक look at क्वेश्चन this. है, एक क्वेश्चन है। Equal lows. ये वापस नीचे। हाँ बोलो। ये जो आपका डाउन, ये जो आपका जोन है, ओके, इसको हमने रिफाइन क्यों नहीं किया 1 आवर पे? जब हम रिफाइन करेंगे तो और छोटा होगा ना जोन। मैं नहीं करता, जरूरी वही नहीं तो है कि मैं क्वेश्चन refine है, करूँ। हाँ वही तो तो मेरी क्वेश्चन मर्जी है। है, भोसड़ी के वो मेरी मर्जी है साले। अरे अगर हमने करा गांडू। होता हमारी एंट्री मिस हो जाती ना। कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं करना, साइकोलॉजी यूज करो ना। यू हैव अ साइकोलॉजी, यू हैव अ सेंटिमेंट। इट डजंट मैटर, आई कैन ट्रेड ऑन वीकली। ग्रुप में मैंने वीकली ट्रेड्स लगाई है भाई। भाई लास्ट एनएफपी पे हितेश वीकली हाँ। कैंडल पे गोल्ड पे ट्रेड नहीं लगाई थी भाई। करी थी, याद 2 है। महीने बाद टीपीट हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है 2070। उसमें तो इनको ये बताओ ना, स्वैप कितना कटा था आपका? स्वैप कटा था $8,000। 8,000 USD they cut, they had a commission. अरे भाई कितनी बड़ी सेल बाय आया, सेल आया भाई, रिजल्ट में भाई। No one believed that. No one believed that this would hit my DP. Everyone was like, "This is not possible. You cannot. How come you have analyze this chart? Is not possible. Gold is about to go down." I am saying, "अरे भाई नहीं होगा." और वो जब Once की I'm बात है saying it जब अपन won't 30 happen, डेज it कर रहे will थे। just go up. No one was listening, and they were like, "Oh." And when I gave the picture that see my DP is hit, everyone forgot that trade itself. Oh, how come? How come you traded this? अरे from the very start, I gave them that okay, this will go up. After 2 months, I'm showing that TP hit. Now they have forgot everything. Now what to do? That's not my job to remind them. Okay, this was a trade. You were fighting with me and you were arguing with me regarding this matter. वो ट्रेड तो मेरे को ढंग से याद है भैया। हाँ हेलो, आपने बोला था आज मतलब बोलो। बेसिक्स का सेशन रहेगा। हाँ बोलो। तो वो अभी तुम्हारे करोगे या फिर जो सवाल जो अभी कर दो। बोलो, तुम शुरू करो, मैं शुरू कर दूंगा तुम्हारे साथ, मुझे टेंशन नहीं है उसका। एक बार ही ना, जैसे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टॉपिक जैसे आपने कल बताया था कि तुम्हें ना तीन ही ठीक है। टॉपिक, तीन ही पॉइंट्स जो है उसी पे फोकस करना है। एक ब्रेक ऑफ हाँ, स्ट्रक्चर ठीक और एक चेंज ऑफ ठीक है। कैरेक्टर और तीसरा तो मैं सप्लाई एंड शुरू डिमांड जोन। तो मैं शुरू करता हूँ मंथली से। हाँ जी, सही है हाँ जी, सही है। हितेश, चार्ट कोई चेंज भी कर लो चार्ट क्या? खोल दो, कोई भी चार्ट खोल दो, मंथली से शुरू करेंगे। चार्ट मेरा GBP USD कहाँ है, वही खोलूंगा मैं तो। वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज यू स्टार्ट विद टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, कोई भी ट्रेड को तुम्हें करना है तो सबसे पहले तुम्हें मैक्रो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। व्हाट इज अ मैक्रो स्ट्रक्चर? मैक्रो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मेड during the last 1 or 2 or 3 or 4 years, whatsoever it is. बेसिकली ओवरऑल जो So trend macro रहता है। perspective. What is a macro perspective? Overall trend जिसे कहते हैं. Yes, correct. हाँ जी, Now, if I see this chart, what do you have? What do you have this? It's a strong Bearish. downward side. Complete. Okay, it's a bearish momentum towards the downside. Now, what do you have? This is the high. High. This is the lower low. This is the lower high again. This is the higher low. No, again it's a lower low because it broke this. Okay, this is a lower low. Okay, there's a lower low. Again, it is trying to make a lower high. Why? Because this has not been broken. ठीक है? तो हमें पता है कि फिलहाल तो हम नीचे की तरफ सोचेंगे, ऊपर की तरफ हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है? तो अब हम फिर मैंने क्या किया? अब ये एरिया पकड़ा। Now we are on sell. At least for now we are on sell. ठीक है? We are on sell. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा? When I saw the market came down, created a lower high, again a lower low, again a lower high, again a higher low. क्यों higher low? क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं टूटा नहीं है अभी। फिर से वो गया लोअर हाई, अगेन बना लोअर लो। क्यों लोअर लो? क्योंकि ये स्ट्रक्चर अब टूट चुका है, टूट गया है। तो मेरा एंट्री पॉइंट कौन सा था? मैंने यहाँ पे एक सप्लाई मार्क किया। भाई ये सप्लाई को मार्क करो, बड़े वाले को।
ये भैया एक लिक्विडिटी जोन भी लग रहा है। ठीक है, हाँ तुम जी, बड़े टाइम वो फ्रेम मैं पे बाद देखते में, हो लग रहा है भाई। वो लिक्विडिटी जोन बड़े टाइम फ्रेम पे तुम्हें डिफाइन नहीं कर पाओगे तुम उसकी। ओके ओके So you need to have a lower time frame confirmation regarding every liquidity zone which has been created. ठीक है? So when I saw simple method. What happened? Market came here. ये देखो, सप्लाई को टेस्ट किया, यहाँ पे इसने सप्लाई क्रिएट किया सबसे पहले, नीचे आया, टेस्ट हुआ, ये गया, फिर इसने नया लो बना दिया। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ये सप्लाई वैलिड है। सबसे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। ये देखो, ये देखो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है पूरा। ये जब मार्केट ने, जूम करके दिखाता हूँ इनको एक मिनट। ये इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इट्स नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। सही है। मतलब यहाँ पे जो ये दो जो बंदा है इसको ब्रेक कर दो, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर चला गया वो प्राइस। तो नहीं ऊपर नहीं गया, नीचे आया भाई। ऊपर हाँ सॉरी नीचे आया। हाँ ठीक है। तो दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जब ये रैली बनी, यहाँ से स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज अ बीओएस। नंबर 1 चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, दो चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई। तो जाहिर है कि जैसे ही वो ये जोन पे आएगा, सप्लाई टेस्ट 1 पे, ये वापस रिवर्स करेगा और देखो मार्केट कहाँ जा रही है। सिंपल। हेलो 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 हाँ, आवाज आ रही है भाई। यार भाई वीक को हम मान सकते हैं बीओएस, जैसे ये वीक है ना, लॉन्ग वीक है, क्यों नहीं मान सकते यार? मंथली चार्ट है यार, वो मंथली चार्ट है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं मान सकते यार? क्यों नहीं मान सकते? इसे मैं क्यों नहीं मान सकता भाई? जाहिर है मैं मानूंगा। पता नहीं यार भाई, पता नहीं, मैंने भाई यार किसी वीडियो में देखा था वो ना, अब वो बोल रहे थे कि अगर वीक का है तो वो लिक्विडिटी ग्रैब होगा, अगर वो अगर कैंडल हाँ हुई तो है ठीक है ना। देखो हाँ। सुनो, ये विक है ना, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब होगा। हाँ भाई यही था ना, मैंने यही पढ़ा था कि मैं वही बोल रहा हूँ। ये सुनो, ये विक है तो क्या ये लिक्विडिटी क्रिएट होके इसने ग्रैब कर दिया? हाँ जी, लोगों के तो एसएल लगे थे ना यहाँ पे। हाँ तो अब क्या यहाँ पे लोगों के एसएल नहीं लगे? क्या ग्रैब नहीं करेगा ये? लगे होंगे भाई, ऑब्वियस जी बात है। तो वही कह रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? ये तो और नीचे जाएगा यार, ये यहाँ तक आएगा। क्या बात कर रहे हो तुम? समझ गया भैया। संभव कह रहा है कि एक बार सीएच और वो वापस रिपीट कर दो। हाँ देखो, सीएच और सीएच कुछ नहीं है। दिस इज अ सप्लाई जो क्रिएट हुआ, मार्केट आई गई, ये वापस नीचे आ गई, और ये जो ब्रेक है ना, ये वाला ब्रेक, ये इसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे सीएच और सीएच कहते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये लो नहीं टूटा है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो क्या ये लो टूटा था इसमें? ये लो कभी टूटा ही नहीं। ये देखो, ये है सीएच और सीएच। समझ आया? इसे सीएच और सीएच कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। वाह, मजा आ गया। अरे इसको क्या मजा आ गया? आपने नशा बताया करके दोबारा। ठीक है। तो अब नंबर टू हमेशा ध्यान रखना, एवरी टाइम, एवरीवन, you have to understand that this trend has a potential towards upside also. Why? Because when it broke the structure, जब ये structure टूटा, ये ऐसे आया, ऐसे जाके ऐसे गया, तो now you have a change of character here also. See, you have a change of character here. See, ये देखो, ये change of character है. See, can you see this? ऊपर वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाला बता रहे हो, जो बिग ने मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ये वाला दिमाग में नहीं घुस रहा कि चेंज ऑफ ऊपर वाला कैरेक्टर नहीं दिया, प्रॉपर नीचे बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा भाई। ये बीओएस है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्यों नीचे आया? ये यहां से क्यों नीचे आया? ये यहां तक क्यों नहीं गया?
अगर स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, से फॉर एग्जांपल कि एक चलो मिनट भैया, ये मैं मैं वैसे ये बोलता बनाता हूँ हूँ। कि एक मिनट मैं वैसे बना देता हूँ। एक मिनट। ठीक है तुम वो करो, मैं तो मेरा ध्यान सिल्वर पे था। भाई अरे यार सिल्वर का चार्ट कहाँ गया? ये रहा। उड़ा 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 उड़ा, अरे भाई यार अब बताओ इनमें इसको, इनमें बताओ। गधेड़ा जा, एक मिनट रुक जा मेरे प्रा। देखो ये बीओएस है, ये बीओएस है, हाँ लेकिन ये जो बनता है ना फिर आखिरी में जो बना, ये आखिरी वाला मुझे सर्कल करो, ये जो है ना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर है? क्योंकि इसने हाई ब्रेक कर दिया हायर पीछे हाई, वाला। हायर लो, ये लोअर हाई है। मतलब जिसे तुम लिक्विडिटी कहते हो ना बार बार, वो ये है, ये लिक्विडिटी है। ये क्या करेगा, वापस ऊपर जाएगा फिर धड़ाम करके नीचे आ जाएगा, लेकिन ये हाई नहीं तोड़ पाएगा। और ये ऐसा अगर होता है। ये तोड़ता है ना ये वाला, तो फिर ये अगर हाँ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो इसे नीचे आना चाहिए बीओएस डिफाइन करने के लिए। समझ गए? समझ गया। ट्रेंड क्या हो गया? हेलो कुछ नहीं हुआ भाई। भाई बोलो। यार भाई आज ना मैंने ईयू पे ली भाई, मैंने ट्रेड ली 5 मिनट के वहां पे। तो इसमें Sell लोअर हाई time frame पे। बन गया ना, ये लोअर हाई जब बन गया, अब ट्रेंड के बाद जब लोअर हाई बन गया, वही हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना? चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो, चेंज ऑफ ट्रेंड कह सकते हो, अलग अलग नाम है। स्ट्रक्चर लोअर शिफ्ट हाई, बोल सकते हो, हाँ सी स्ट्रक्चर शिफ्ट हाँ बोल सकते हो। हाँ सो दैट्स गुड। बढ़िया बट बढ़िया। ओवरऑल मैक्रो को ध्यान रखोगे ना तो मैक्रो हाँ तुम्हें बहुत क्लियर होता है। मैक्रो पे जी। ट्रेड करने का अपना मजा है। ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम क्या स्कैल्पिंग के लिए सही होता है। स्कैल्पिंग किया 100-200 पिप निकाले, निकल गए भाई। Scalping बड़े में बड़े भी टाइम फ्रेम तगड़ा है। करोगे ना 2-2 हजार पिप, 3-3 हजार पिप, भाई कुत्तों वाले ट्रेड होते हैं। अच्छा तो लेकिन उसमें पेशेंस बहुत चाहिए। कब तक चलता होगा ये, वो पेशेंस तो कितने बहुत चाहिए टाइम, भाई, बहुत चाहिए। कितने टाइम तक चलती है ट्रेड ऐसे एवरेज, फॉर एग्जांपल? एक चली थी 12 साल ओहो रहने। मंथली पे, 2009 में ट्रेड की थी इसकी माँ का। अभी अब 2020 में तो खत्म, 2021 में खत्म हुई है वो ट्रेड। अरे मर गए। फिर एक ट्रेड अभी चालू है यूरो जीबीपी का सेल, मई 2021 को है। अभी टीपी हिट करने के लिए ये अच्छा पूरा मार्च, मैंने सोचा था ये मार्च में टीपी हिट हो जाएगा, आज मार्च 31 है। बताओ आज ट्रेड अभी तक टीपी हिट नहीं हुआ, अभी भी 400-500 पिप दूर है। मैं क्या करूं? स्कैल्पिंग ही बेस्ट अच्छा है भैया भैया, फिर तो। अगर भैया स्कैल्पिंग देखा जाए तो कौन से टाइम फ्रेम से स्टार्ट करनी चाहिए स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग अगर करनी हो ना तो डेली डेली देखो, D1 से डेली से H4 पे आओ, H4 अच्छा से H1 पे आओ, हाँ H1 हाँ से 30-50 मिनट्स में खेलो, बेस्ट होता है। और एंट्री पॉइंट लेनी तो 5-5 मिनट पे एंट्री लो, बहुत तगड़ी एंट्री मिलती है। स्नाइपर मिलती है कल भाई। दिखाई दी ना, कल M1 पे किया था ना गोल्ड 90 पिप का, ठोका था ना। यार गोल्ड की एंट्री मिस हो गई सेल की। वो साहिल भी सही कह रहा था, वो ऊपर लिक्विडिटी थी, वो वहां से उस पॉइंट को टच करके वो ऊपर चला गया था लिक्विडिटी ग्रैब हाँ बिल्कुल सही गया था, सेम एकदम। फिर वहां से वापस नीचे आया। अच्छा भैया, यहाँ पे अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमें अब। इसकी माँ का, जब इस गांडू ने गोल्ड बाई किया ना, गधेड़ा ने, देवांश ने, हाँ। तब मैं इसको बाई नहीं करने वाला था। मैंने बाई तभी भी नहीं किया, मैं अब बाई करूंगा। हाँ Change तो of अब character मिल मैंने गया मेरे भाई, अब मैं नीचे जाके लिक्विडिटी पड़ी है उसको ग्रैब करने के बाद मैं फिर बाय करूंगा। को। हाँ मैं बाई पर रहूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है। 19-14 पे बाय करूंगा मैं अब उसको। एक मेरा सेल का ट्रेड चालू मिस हो गया, माँ की आँख, सिल्वर मिस कर मेरा भी दिया मैंने। गोल्ड का सेल मिस हो गया मेरा ये। मारी हाथे क्या माऊ बदू ताई के। मैं जा रहा हूँ खाना खाने। यार बाय, जा। खाना खाने जा रहा हूँ। हितेश बोलो भैया। जल्दी देखो सिल्वर देखो क्या मिस, मैं पूरा ट्रेड मिस हो गया यार। गोल्ड का
मिस हो गया बैंक और क्या। हाँ टाइम फ्रेम यार। बोलो, टाइम फ्रेम मेरा बोलो। सिल्वर का मिस हुआ 30 मिनट्स, देखो बहुत क्लियर है। कहाँ गया दमालू, कहाँ दिख गया? गया, दिख गया। दिख गया ना, साला मिस हो गया माँ की आंख। नितेश मैं गोल्ड क्या- का देखियो भाई, गोल्ड का देख, गोल्ड का 5 मिनट पे। तगड़ी मस्त भैया। स्नैप टच के साला आया, भैया मस्त टच हो गया। हाँ ये जो आप सिल्वर का बता रहे हो, यहाँ पर यही तो हो रहा है कि पहले तो ब्रेक, एक तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है और साथ में क्या नाम चेंज ऑफ करेक्टर भी हो रहा है। फिर जो ये रेड कैंडल छोटी सी बन रही है, वहां से हम डिमांड जोन बनाएंगे कहीं ना देखो कहीं। देखो देखो, थोड़े time frame में ये जाके। चीज को तुम देखोगे ना, ये देखो, ये चीज को देखोगे ना, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्यों? हम्म। क्योंकि लो यहाँ पर है, हम्म। ये बीओएस नहीं है, ये अरे चेंज ऑफ बहन चोद, कैरेक्टर है। कितना गिर रहा है ये। ये देखो, ये देखो, ये बीओएस था। हाँ जी। अरे यार माँ की कांड फट तो यार गई मेरी। गोल्ड कितना गिर गया। अबे ए रोतलू, तुम चुप हो जा, हट। ए, ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। एक काम करो, तुम्हें ये सेल करना है ना, अभी वेट करो थोड़ा, ये ना यहाँ तक आएगा, ये लिक्विडिटी जोन बैठा है यहाँ पे, ये बाई जाएगा अभी, ये बाई जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी खाएगा, लिक्विडिटी खा के हितेश जरा यहाँ पे देखो तो कोई सप्लाई बैठा हुआ है? किधर? अरे बहन, ये सप्लाई बैठा है यहाँ पे, ये देख हितेश, ये मार्क करो, इसको मार्क करो, मार्क करो, मार्क करो, ये सप्लाई तक जाएगा। बस भाई, तुम लोग यहाँ से सेल करना शुरू कर देना। तुम्हारा मार्केट जब यहाँ पे मिले ना, तुम्हें यहाँ पे सेल करना शुरू कर देना, ये लंबा जाएगा आज। वेट करो, अभी भी टाइम है, अभी नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। भाई वेट करो। जैसे वो एक बार टैप है सप्लाई पे, तो हो सकता है दोबारा कहाँ पे? टेस्ट कर एक लेना ही एक बार बार तो हुआ। सप्लाई। हाँ कोई भाई कोई एक कोई बार प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो हमने कोई- 1 मिनट पे वो कंफर्मेशन ले लेंगे ना। कंफर्मेशन तो अपने पास तो बहुत रूल्स है यार, CH और BOS तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके एक बाद ही मिनट तो पे। हमें ट्रेड लेनी है। 1 मिनट 5 मिनट पे भाई वेट करो, हो जाएगा। ओके भाई। भैया ठीक है, हाँ बोलो। बेसिकली ओवरऑल जो हमें करना है वो ये करना है, पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हमें मेजर ट्रेंड पता करना है, फिर बाद में वहां पर हमें नहीं, सबसे हाँ। पहले तुम्हें करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, फिर ये सब करना है। ठीक है। समझ गए? बाकी तुम समझ गए हो, तुम रिपीट कर चाहो तो कर सकते हो, और तुम्हें बाई करना है तो यहाँ से बाई कर देना। अरे नहीं यार, ये टेस्ट ही नहीं हो रहा, ये टेस्ट ही नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ। अबे फिलहाल बाई है, अभी टाइम है बाई का, अभी बाई की ओर निकलेगा ये, फिर सेल अरे जाएगा। भैया दोनों भैया तरफा ट्रेडिंग। हेलो, हाँ बोलो। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ से अगर सप्लाई क्रिएट हुई और ये नीचे गया, इसने अपना लोअर लो बनाया, लेकिन जब ये ऊपर गया तो यहाँ पर इसने नेक्स्ट जो लो बनाया, ये अब हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है ना? नहीं, इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कह सकते ना तुम। चेंज ऑफ, रब करो, ये पूरा रब करो। स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं, स्ट्रक्चर तो अभी बना ना मेरे भाई। सुनो, लो पकड़ा, जी लो पकड़ के उसने स्विंग बनाया, ये स्विंग जब टूटा तब ये चेंज। अच्छा। वॉइस कट गया। ये लो जब तक नहीं टूटा तब तक ये स्ट्रक्चर अभी भी बन रहा है। अच्छा। ये स्कैल्पर्स के लिए, अगर तुम ऐसा स्कैल्पिंग सोचोगे तो ये हाई, ये हाई, ये लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है, ये यहाँ पे इसलिए सेल जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। ये एक्चुअली ये वैलिड सप्लाई है और ये हमने मिस कर दिया ऑलरेडी। अब हम ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ। अब ये थोड़ा ऊपर जाए ना, अगर ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर थोड़ी के, तो मैं ट्रेड करना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगा अब ट्रेड, केस ऐसा हो गया। समझे? ये रिट्रेसमेंट लेवल पे आएगी अभी कैंडल वापस ऊपर। अरे इसको ऊपर जाना है यार, मुझे सेल दे यार। ऐसे कैसे मिस कर दिया यार, मेरा ध्यान मेरे चार्ट का मैपिंग किया हुआ है ये। कोई नहीं, हो गया तो मिस। मारी हाथे केम दया हो गई। बोलो। अपना दुख दूसरे का दुख ऐसी की तैसी। भैया पटेल जी को दुख ज्यादा होता है। आप जब मतलब करते हो ना, तो आप बहुत इसे सिंपल रखते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं।
एकदम क्लियरली सबको समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब हम हाँ, वो करने तो बैठते हैं तो उसमें बहुत कंफ्यूजन ये लग रहा होता है, लिक्विडिटी भी सब कुछ लग ही रहा होता है कि ये भी होगा ये भी होगा, सेल भी लग रहा नहीं होता है, बाय भी नहीं लग रहा यार, नहीं इतना, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, जो तुमने सीखा उसे भूल जाओ। जो भी तुमने सीखा उसे भूल जाओ। ओ पानी दे बे सुअर, जो भी तुमने सीखा उसे भूल जाओ। माइंड एकदम एम्प्टी करो, एम्प्टी करके जो मैं बोल रहा हूँ उसे दिमाग में डाल दो, बस तुम्हारा काम बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाए। है। बस बिल्कुल। 4-5 अब उसमें क्या जैसे टॉपिक स्ट्रेस जो लेवल आपने तुम्हारा बताया वही कम हो दिमाग में जाता डाल है। दूं। जैसे आपने 60 मुझे पिप का बताया, मूव है, 60 पिप का मूव है गोल्ड का। अबे यार, अब मैं तुम्हें किक करूं या तुम तो अपने आप ही चुप हो गए? क्यों भैया यहाँ पर इसने ये यहाँ पे तोड़ा, यहीं पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया फॉर स्कैल्पिंग, लेकिन फिर हमें बीयूएस यहाँ पे मिला ना, ये बीयूएस तो बहुत अलग। और बीओएस फिर तो हम अभी हुआ कहीं, ही नहीं है। वो नहीं है भाई, वो नीचे वाला तोड़ेगा जब होगा। हायर हाँ टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बीओएस नहीं हुआ है, ये अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही घूम रहा है। अच्छा ये ये है ना लोअर, चेंज ये ऑफ देखो ना, कैरेक्टर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लोअर लो, हाँ ये लोअर हाई, क्यों? क्योंकि ये ठीक स्ट्रक्चर नहीं ठीक। तोड़ पा रहा है, ठीक है। ये अच्छा हायर लो, क्यों हायर लो? क्योंकि भाई ये लो नहीं टूटा है। अब तुम स्कैल्पिंग के हिसाब से देखो, तो मैं स्कैल्पिंग को हाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये लॉन्ग हाँ टर्म के लिए, ठीक है, इसे रब करो तो हितेश। कर रहा हूँ भैया। तो अब यहाँ पे स्कैल्पिंग क्या देखेंगे, ठीक है। चलो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? रेंजिंग है। ओवरऑल ट्रेंड रेंजिंग है ना, क्योंकि हम स्कैल्पर्स है तो स्कैल्पर की तरह सोचना पड़ेगा। ये रेंजिंग हाँ मार्केट है। मार्केट का एक लो एक हाई है, एक लो है, एक लोअर हाई है, एक हायर लो है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ये हो गया मैक्रो स्ट्रक्चर। स्कैल्पर्स का मैक्रो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा था। अब इसको तोड़ते हैं छोटे में। हाँ टाइम लो, फ्रेम। हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, क्यों? क्योंकि ये नहीं टूटा। हाँ हाँ लोअर बिल्कुल। लो, अब यहाँ से बीओएस है, इसलिए यहाँ से रिएक्ट करके वापस नीचे जा रहा है। 100 पिप का मूव ले सिंपल। चुका भैया, सिल्वर अब अरे जीता है। तुम अब छोड़ो, तुम अभी मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। हाँ मेरी जल दुखती रहे नस पे हो, हाथ मत पकड़ो। जल रहे हो। बेवकूफ, नॉनसेंस हो गया मेरे साथ आज। कोई नहीं कोई नहीं, मैं दे दूंगा इसका पैसा। हाँ दे दो, दे दो, दे दो। $800 तो हो गए हो तब तक मेरे, दे दो। हाँ हाँ बोलो तो कब दे फिर, रहे हाँ तो फिर मेरा वो AUD USD का पैसा कब दोगे? हो? हरामी साले, हट। नहीं दूंगा। पहले मैं AUD तुम्हारा, USD का। सुनो, मैं तुम्हारा फोन वहीं से मंगवा रहा हूँ। डन। एसी, भैया आईफोन एसी। SE नहीं, एक चीज ना, XE मुझे नहीं, ना ओ XR। भाई, ओ नया निकला जो लॉन्च हुआ, नया अरे एसी नहीं लॉन्च नहीं, हुआ। मैं देख लेता हूँ एक बार, चलो आप देख समझाओ लो, इनको। देख के बता देना। हाँ बोलो रोहित तुम। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ना एक चीज और भी लग रही है यहाँ पे कि जैसे हम्म, पहले तो हमें हम मतलब हम लोगों का भी बेसिक नहीं आता ना सही से, तो पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर टिफिन। कहीं ना कहीं कवर करना चाहिए अच्छे से, एक एक टॉपिक करके। अब सारे टॉपिक अगर एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। पहले मार्केट स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर एक एक करके कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बीओएस होता है मेरे भाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले बीओएस कभी नहीं होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ ट्रेंड कब होता है? उसके बाद बीओएस डिफाइन होता है। पहले पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर इसका रीजन है सप्लाई ना, वैलिडिटी, कोई भी ट्रेंड फिर को चेंज स्ट्रक्चर। करना हो उसे, जैसे देखो ना, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कोई भी ट्रेंड को अगर मुझे चेंज करना हो, ये ट्रेंड को चेंज करने के लिए पहले इसने क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिया है मुझे। हम्म क्यों? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कब डिफाइन हुआ? जब इसने लोअर हाई बना के नया लो बना दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत क्लियर है, तो देखो। उसे इसे एक ये जो लोअर लेवल है ना, लोअर हाई भी बनाना था, हाँ, तभी इसे हमें एक पता लोअर चला। हाई बनाना था, फिर नया लोअर लो बनाया, तो ये बीओएस हो गया। उसके बाद मैं डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ये बीओएस है। और और ये चीज जब बनी तभी हमें पता चल गया कि यही हाँ, इससे ये बनी तब हुई BHOH, ना। ये मैं वही कह रहा हूँ, ये बनी तब ये हुई ना। और ये इसी हमने तो से नहीं हमें बनाई। पता चल गया BOS इसके बाद। हाँ, तो ये चीज हमने तो नहीं बनाई, ये तो मार्केट ने हाँ बनाई। तब जाके हमने डिफाइन किया ना, तो मेरे पास डेफिनेशन है इस चीज का कि भाई ये चीज हुई है। लेकिन अगर अगर ये चीज, अगर ये वाला लोअर लो नहीं बनता तो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता लोअर कि हाई, ये, ये लोअर हाँ हाई है। भाई, हाँ लोअर हाई, हाँ, वरना ऐसे तो लगता ये, है ऐसे जाएगा मार्केट। हाँ,
अब समझ अगर गए ये तुम। नहीं ऐसे तो जाता। ये देखो, फॉरेक्स इज नथिंग बट 80% ऑफ वेटिंग। क्यों कहते हैं ऐसा पता है तुम्हें? हाँ। ये मैंने नहीं बनाया, ये किसी ने फ्रेज बनाया है, किसी ट्रेडर ने ही बनाया होगा जाहिर है, बट ये बहुत ज्यादा वैलिड फ्रेज है कि भाई हाँ ये वेटिंग है, क्योंकि वेटिंग पीरियड ही तुम्हारा पेशेंस टेस्ट लेता है, मेरे से और पूछो। पेशेंस टेस्ट लेगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी तो प्रॉफिट होगा, जाहिर है। हितेश भाई ईयू खोलोगे? बोलूंगा, पर ये चीज मेरे से पूछो। पेशेंस नहीं है मेरे में, आज बहुत लॉस कर चुका हूँ मैं। यू। और मैंने भी जब तो किया भैया हितेश, मैंने भी तो 5 किया मिनट हितेश, पे। मैंने भी तो किया है। हाँ बहुत, आपने तो बहुत ज्यादा, तो मेरे से तो बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने भी किया भाई, मैंने थोड़ा सा किया भाई अभी पिछले महीने। अरे तो अभी फिर यार लॉस हो में $100 गया। का अकाउंट ब्लॉक कर दिया भाई। अरे ब्रो हो गया भाई मैं तो Now दो see, गुप्ता जी। दो बार wait, 10,000 के कर दिए। Euro USD जी। gave you a confirmation. Euro USD has given you a confirmation of change of character here. Just look at this. ब्रो हो गया ये भाई change of गोल्ड। character है। Now market यहाँ पे जाए, यहाँ से पिलना शुरू कर देना, सीधा सेल TP ये हाँ रख दो, हाँ बिल्कुल खत्म बिल्कुल। भाई तुम्हारा काम। 5 मिनट पे खोलना है अरे भाई, मर 5 मिनट गए, पे। अरे मर गए। 5 तो मिनट में सेल बोल। होगा ना भैया इस पर? हाँ हाँ, लंबा सेल जाएगा, अरे वहीवट क्या होगा, करेंगे? वहीवट। ये पर 5 एक मिनट चीज तो का आ मैं गया ना। बताऊं भाई, किसी के कहने पे मत चलना, खुद का हाँ दिमाग बस ठीक है लगाओ, भाई, बस ठीक है ठीक है। सिंपल। नील भाई यू मत मैंने करो यहाँ कि पे नील हाँ भाई लिया था कह रहे हैं ट्रेड। सेल करो या बाय करो, तो तुम उस हिसाब से मत करो। नहीं हितेश, हाँ हाँ ये ट्रेड यहीं से वैलिड हो गई थी। मैं बाथरूम में बैठा था और मैं चार्ट देख रहा था, ये विप्सो है ना, तभी मैं हाँ समझ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है यहाँ पे। ये दिख मैंने गया था। यहाँ से सेल मारने शुरू ठोक दिए थे, यहाँ पे सेल बहुत ग्रेट मारे ग्रेट। मैंने। ये देखो कहाँ गया। दिखा था। अच्छा भैया सुनो सुनो सुनो, ये जैसे ये बनाया है इसने, ये यहीं से हमें पता चलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं गया। हाँ इसने जैसे यहाँ से गिरना शुरू हो गया, फिर हमें ना ये ना, पता चल गया तुम कि समझे नहीं, नहीं 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 नहीं, डिलीट करो, ये हाँ पूरा डिलीट हाँ कर दो। मैंने कहाँ से बताइए। पकड़ा पता है इसको? ये विप्सो हाँ देख रहे हो, ये विप्सो देखो। इनको पहले विप शो और बताओ कि क्या होता है, कि अरे लॉन्ग विप्सो विक मतलब विद जीरो बॉडी। विक है ना, ये जो विक बनी है ना, हाँ हाँ ये हाँ, विक नहीं बनी, ये जो मैंने सर्कल की हुई है, बिल्कुल बिल्कुल इसने यहाँ पे चेंज दे दिया था, देखो इसे, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझ गया। हाँ हाँ राइट 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 तैयारी राइट। हो गई थी, तो यहाँ से लो बन चुका चेंज है, ऑफ कैरेक्टर मिल गया हमें। तो तुम्हारा ट्रेड यहाँ से वैसे भी एक्टिव हो चुका था। ये अरे देखो हाँ हाँ कितना गंदा गया। सही का सही का। भैया भाई मेजर मैं बताऊं, मेजर का फर्स्ट टच ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नील भाई सेकंड टच सेल। भाई मैंने ना यहाँ पे बाय किया था। मैंने देखा कि ये अरे पड़ी है सारी भाई लिक्विडिटी। भाई सुनो तो सही, मैंने देखा ये नहीं, पड़ी है कौन सारी पहले तुम्हारा लिक्विडिटी। नाम क्या, पहले वो बताओ। एकम भाई, एकम। भाई एकम को बंदूक से उड़ा देता है इते, ये पागल हो गया लड़का है, भाई ये सुनो तो गांडा सही, वंडा हो गया। नहीं मैं भाई क्यों सुनो सुनूं, तो सही। मैं तो सुनूं भाई क्यों? प्लीज यार, भाई प्लीज यार सुनो हाँ तो भाई। मैंने देखा ये यहाँ पड़ी है सारी लिक्विडिटी, ये पड़ा है अपना डिमांड पड़ी है ये वाली, ठीक है भाई, यहाँ पे। अच्छा तो भाई इसने जब दिस इसको लिक्विडिटी खाई, डिमांड की टच, और मैंने देखा ये पड़े इक्वल हाइस यहाँ पे। हाँ हाँ तो भाई मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी, यहाँ पे आया और मैंने एग्जिट ले लिया। अब तो सही लिया है तो। प्रॉफिट सही है ले ना भाई? लिया। हाँ भाई। नहीं तो एक उस काम हिसाब से करो, उसने इसको सही करा है। नहीं तो उस हिसाब से इसको बंदूक दे दो, ये हितेश को उड़ाएगा। एक काम तुम हितेश को उड़ा दो, इधर को क्यों उड़ाएगा? बहुत अच्छा किया तुमने। क्या बे, नहीं सही किया इसने। ये मेरी मेरा गलती क्या थी यार भाई? इसने ये देख के नहीं नहीं, बिल्कुल सही तो करा भाई। सही है, तो सही है। तुमने सही किया है। मुझे लगा तुम यहाँ पे अभी बाई पर हो, मैंने ये सोचा, नहीं 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 भाई, इसीलिए वो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने देखा कि यहाँ पे इक्वलाइज ये है, देखो लिक्विडिटी है, ये इसको खाएगा, तो मैंने यहाँ पे अपना टीपी रख दिया। तुम्हारे बाई का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। स्नाइपर लेनी होती तो की बात, गया रेंज आई, ये लेवल टूटा नहीं, वापस गया, ये गया, यहाँ पे चेंज हाँ ऑफ जी। कैरेक्टर हुआ है, देखो ये देखो, ये वापस नीचे आया। ये कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी मैंने सेल पे उतरना है, कभी भी उतर सकता हूँ मैं, लेकिन तुम थे यहाँ पे बाई पर। तो बाई का यहाँ पे एक अच्छा सा डिमांड जोन मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ही तगड़ा डिमांड जोन था। अगर तुम स्नाइपर लेते ना तो कुत्तों वाले पैसे बना सकते थे। ओ भाई यहाँ पे डिमांड ड्रॉ करो हितेश, कर रहा हूँ भैया। यहाँ पे एक डिमांड बैठी है, ये देखो, ये यहाँ कैंडल है ना, ये डिमांड है। दिख गई मेरे को, दिख गई। यही पकड़ी भाई मैंने। और इसका मेजर डिमांड यहाँ पे बैठा हुआ है। मेजर नीचे रहा। मेजर का पहला टच ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद में एंट्री, सीधा सिंपल। बूम, परफेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे सेल इसलिए सोच रहा था, मैं बाई पर यहाँ पे सोच नहीं रहा था, क्योंकि ये कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दी थी
भैया दोनों, भैया आप भी सही थे और एकम भी सही था, दोनों अपनी जगह हाँ, सही थे। एकम ने अच्छा ट्रेड किया, ये बहुत अच्छी ट्रेड है, कहना हाँ पड़े, लेकिन ये बहुत जोरदार ट्रेड है ये लिक्विडिटी है भाई, ये पूरा जोन ही लिक्विडिटी का बैठा हुआ है, ये पूरा जो चैनल है ना, ये लिक्विडिटी का लॉन्डे ने 23 पूरा पिप खा कवर गया करे ये। हैं, सही है। अच्छा है ना भाई, भाई मेरी स्काल्पिंग में तो 1 मिनट में भाई खत्म हो गई ट्रेडिंग। एक मिनट लगा सब ये वाली बनने में, कैटल बन। खत्म। अरे सचिन भाई, वो टिफिन वो मंगवाना फिक्स, वहीं पे खा लेते फिर, फिक्स थाली। नील भाई चल उधर ही ले ले टिफिन। हाँ, ऐसी महंगा है, एक्सआर सस्ता है। महंगा सस्ता फर्क अगर नहीं भाई पड़ता। इसका ना ना ना, वो ऐसी नहीं चाहिए मेरे को। एकम जी वो भाई एकम भाई, इस पे एक बार चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाओ कि भाई कैसे क्या ली तुमने। बताता हूँ भाई। भाई ये पड़ी है सारी लिक्विडिटी नीचे, और ये पड़ी है इक्वल हाइस यहाँ पे, ठीक है भाई। ये पड़ी है डिमांड यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। मैंने उसको मैनुअली देखा कि अगर यहाँ पे कैंडल आती है, न्यूज थी भाई यहाँ पे ना, 245 हाँ, पे न्यूज आई थी, यूरो की न्यूज आई न्यूज थी, थी। मैंने न्यूज देखा थी कि आज। यहाँ पे नीचे आएगी, अगर यहाँ पे इसके अगर ये वाली विक यहाँ पे आई तो भाई मैंने अपना बाय ऑर्डर लगा दिया, और जब भी यहाँ पे आई तो मैंने भाई अपनी ट्रेड बंद कर दी। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। बाई करो, सेल करो, स्काल्पिंग में तो साला तुम बाई पे भी टीपी लगा सकते हो, सेल पे भी टीपी, एक ही जगह एक ही चार्ट पे बाई और सेल दोनों का टीपी लगा सकते हो। मैंने ऐसे भी बंदों को देखा है। और भाई किसी को डाउट हो तो पूछो, कोई नया बंदा आया अगर हो। भाई इसका ओवरऑल देखना हो तो कैसे देखें? ओवरऑल मैंने तुम्हें अभी सेल का एंट्री बताया ना भाई जो नहीं तुम भाई, लोगों अगर ने मैंने मिस इसको ओवरऑल भाई इसका मैंने बयास देखना हो कि 4 आवर पे, मतलब कि यहाँ ये अभी नीचे आएगा या अभी 1 आवर पे नीचे आएगा, ओवरऑल भाई कि लॉन्ग टर्म ये कहाँ पे जाएगा अब, अगर वो देखना हो। लॉन्ग टर्म तो अभी भी मुझे सेल ही लग रहा है, कल से मैं इस पर हूँ, मुझे सेल की ओर निकल रहा है, क्योंकि भाई अभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है और रिटेस्ट बाकी जो है। भाई जोन था ना, ये वाला सारा जोन था, ये इम्बैलेंस था 4 आवर का, अभी ये फिल हो गया तो नीचे आएगा ना, ये तो नीचे ही जाएगा, है ना। नीचे करेगा यूएसडी। ये और ऐसा है। अरे जाहिर है, अब्बा हारमोनियम रखते थे तो हारमोनियम बजाते होंगे। अरे जाहिर है। क्या हुआ? ये साहिल आ गया। साहिल तो कई देर पहले आ गया था, 5 मिनट हो ये गए साहिल भाई। बेवकूफ, इसको कितना भी बोलो ना, इस झंड को ना धंधे पे लगना नहीं है, चार्ट पे ध्यान है इसका। शॉप पता नहीं कौन ही संभाल रहा है। नहीं, मैं बैठा हूँ ना गल्ले पे। साहिल के साथ बैठा हूँ मैं गल्ले पे। साहिल का तेल बेच पाऊंगा मैं। इंजन ऑयल लेने आया था मैं इसके साथ, इसकी दुकान पे, फिर मैं बोला कि सोचा मैं ही गल्ले पे बैठ जाता हूँ। ये Redmi Note 10s कौन है? Redmi Note 10s ऑर्डर ले लो। आ जाएगा। हेलो, Redmi Note 10s भाई अपना माइक अनम्यूट करो। संभव है वो? संभव नहीं है वो, संभव अबे नहीं, संभव है वो। संभव नहीं है वो। नहीं, मेरा माइक बिल्कुल शांत है। ये कौन आया है? Redmi Note 10s कौन है भाई? अपना माइक अनम्यूट 10s करो। कौन सा फोन है? बाय द वे 10s फोन कौन सा है वो तो बता। MI का है। सही है, सही जा रहे हो बेटे। चलो मैं यूएस टेक देखता हूँ, यूएस टेक क्या कर रहा है। ओ भाई ये बंदा यार, अनम्यूट नहीं कर रहा, फिर मैं किक आउट करूंगा। हाँ निकाल दो उसको, अनम्यूट ना करे तो निकाल दो। एक बार पूछो, 2 बार, फिर निकाल देने का। भाई अनम्यूट कर लो, अपना नाम बता दो। अरे नहीं है, निकाल दो ना उसको, छोड़ो ना, अपने क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, निकाल दो। उसको नहीं पड़ी तो हम क्यों टेंशन लेके तुम्हें भाई। मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि अपने ओवियस भाई हैं, वो बोल रहे थे ना कि मैं बिना नाम के आता हूँ कई बार। वो नहीं ओवैस है, तो- ओबिस भाई नहीं है। ओवैस होता तो पता चल जाता। निकाल दो उसे। जो ओबिस का नेम है, मुझे और नील भाई को पता है। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। निकाल दिया मैंने। ये राम तो अब उस वाले क्या ग्रुप से करें? आया, अपने नए वाले ग्रुप से। यूरो यूएसडी का अभी कोई कंफर्मेशन अभी बाई का नहीं है। अब
सेल का तो ठीक ही है, ये साले बाथरूम में बैठे बैठे मैं ये सब धंधे करता हूँ, बताओ शर्म आनी चाहिए मुझे। सही है ना, क्या दिक्कत है? फर्क इतना है, साहिल कुर्सी पे बैठ के कर रहा है, आप दूसरी कुर्सी पे बैठ के कर रहे हो। सही बात है, ये भी सही बात है। भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यार। भाई अभी 1 मिनट में मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ये सर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? कौन है ये? गोल्डी? गोल्डी गोल्डी ओह माय गॉड, गोल्डी फिर से पूछो। और सर क्या हाल है आपके, ये बोला था मैंने। नहीं नहीं, पूछो पूछो, तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दूं बेवकूफ। भाई लौंडे ने कई दिन बाद में दर्शन दिए हैं। अरे तुमने रात को फोन किया था, मैंने फोन वापस किया, फोन नहीं उठाते तुम बेवकूफ। तो मैं खाना खा रहा था रात के 12 बजे। वाह यार, इसका बाबू इसको खाना खिला रहा था। मेरे बाबू ने खाना खाया, मैंने खाना खाया था। मैंने गोश्त नहीं खाया। गोल्डी कैसी रही ट्रिप ब्रो आपकी? हमको मजा आया। मजा आया? नहीं जीतेगा, मैं नहीं जीतेगा। हाँ तो गोल्डी आप क्या पूछ रहे थे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? नहीं तो खाना खाना, चलो मैं खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। मैं खा लूँ अभी, चलो। हितेश, हाँ भाई बोलो। भाई जैसे ये यहाँ पे मैं कहूँ, यहाँ पे डिमांड बन रहा है कि मार्केट ऊपर गया, ठीक, और फिर ये ऐसे गया, लगातार ऊपर की ओर डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ गया? भाई मैं बताऊं, मैं यहाँ ट्रेड करता ही नहीं, जब तक कि इस हाई को नहीं तोड़ता ना, जब तक मैं ट्रेड नहीं करता। ये तुम यार वो मानो कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो मैं ये ट्रेड नहीं करता इस जगह पे। अगर तुम स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो वो जायज है, क्योंकि ये डिमांड हो गया, फिर तुम यहाँ से जो भी तुम्हें स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मिलता है तो सीधा तुम ऊपर की ट्रेड लगा देते टीपी। अगर मैं करता नहीं, मैं इसका वेट करता ब्रेक होने का। वो तो समझिए, जैसे ये वाला भी समझने के लिए ले रहे हैं एग्जांपल, है ना? ये जैसे यहाँ से डिमांड हुआ, ठीक, तो अगली चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करूँ इसमें? भाई देखो, तुमने ये जैसे मान लो ये डिमांड डाली है, ठीक है, तुमने जो भी ये डिमांड डाली है या फिर ये जो भी ये डिमांड डाली है, ठीक है, मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ पे आने के बाद में तुम बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओगे। अब 5 मिनट पे हो तो तुम्हें यार किस पे बताऊं, कौन से टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा तुम्हें? साहिल भाई कौन से टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा इसको अब? 1 सेकंड। नहीं 5 मिनट में, अरे 5 मिनट में जैसे 30 कर लो ना, फिर इतना छोटा क्यों चला है? 30 कर वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो, मैं इसलिए मैंने ऊपर टाइम फ्रेम देखा 5 मिनट में, कहा कि यार ये अगर ये ब्रेक होता तो मैं कुछ सोचता, और ये ब्रेक हुआ फिर मैं कुछ सोचूंगा यार। वो 30 मिनट का हाई होगा ना, वो 30 मिनट का हाई होगा ना। अगर ये ब्रेक हो भी गया, ये ब्रेक हो भी गया तो तुमने यहाँ से बाई सोचा, तो तुम्हारा तो ऐसे लग गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 30 के अगर तुम जैसे यहाँ कर रहे हो ना ट्रेडिंग, अगर तुम यहाँ कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे आने के बाद में अगर तुम है ना फिर 1 सेकंड में जाओ, 1 सेकंड में तुम्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना चाहिए, जैसे कि मार्केट 1 सेकंड में यूं आ रहा होगा, ठीक है। अगर तुम्हें यूं दिखता है और फिर ना ये होता है ना, तो यहाँ पे एक डिमांड डालो, इस पे आए और सीधा बाय कर दो, फिर ये नीचे ऐसे हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारी एंट्री पॉइंट हो गई, फिर टीपी जो भी तुम्हारी ये टीपी हो गई ये वाला, ऐसा। अच्छा तो और भी ज्यादा लोअर इसका टाइम फ्रेम चेंज और कर तो यार लो, कितना लोअर जाओगे, मिनी सेकंड्स तो आती नहीं है। मैंने 1 आवर का मैं कह रहा हूँ चार्ट लगा लो। तो 1 आवर का चार्ट लगाऊं क्या? हाँ 1 मिनट, साहिल भाई समझाएंगे तुम्हें। अब जैसे मैं ये इधर से लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ से सप्लाई की चांस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी वैलिडिटी नहीं है। सप्लाई तो कैसे मुझे दिख रहा है भाई तुम्हें? सप्लाई वो गिरना सप्लाई शुरू हुआ ना। टेस्टेड है। हाँ जो सप्लाई मार्क करके बैठे हो वो टेस्टेड है, उसे सप्लाई ना मानो। रुको साहिल भाई मैं एक बार चार्ट सही कर लेता हूँ। हाँ अब बोलो। फिर क्या? अरे यार ये चार्ट ही नहीं सही। कैसे यहाँ पे मैं बताऊँ क्यों? देखो
तुम सेल कब तक नहीं करोगे जब तक तुम्हारी ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई। तो भाई तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये को मतलब थोड़ी है यहाँ पे ट्रेड करने का। अब ये ब्रेकआउट हुआ है तो मैं भाई इससे पहले मैं को ट्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि देखो इतना तो ये इम्बेलेंस भरा पड़ा है, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे, ये कुछ लिक्विडिटी भी क्रिएट ठीक करेगा, ठीक फिर उसके बाद में नीचे आएगा, फिर यहाँ पे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूंगा, फिर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर डिमांड डालूंगा, डिमांड डालने के बाद में फिर मैं बाय करूंगा। इतना प्रोसेस होता है भाई कंफर्मेशन ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि ब्रेकआउट हुआ है ना इधर, ये देखो ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक मूव है। मैं यूं नहीं करूंगा इसको, यूं यूं मूव नहीं करूंगा इसको मैं, ये पूरा एक ही मूव है। ये इम्बैलेंस भरा पड़ा है इधर, ये इधर इसका डिमांड है, ये इस पे आएगा। आने के बाद में मैं अब जैसे 1 घंटा ना, तो मैं फिर 5 मिनट पे चला जाऊंगा। तो 5 मिनट पे मेरे को जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा ना यूं, फिर मैं डिमांड डालूंगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई डिमांड होगी, जो भी डिमांड होगी मेरे 55 के 50 के नीचे जितनी भी डिमांड होगी उस पर मैं डाल के फिर मैं बाय करूंगा, ऐसा। यार ये अच्छा नहीं है, क्या कह रहे हो साहिल भाई? ये पेयर अच्छा नहीं है देखने को। यूरो यूएसडी अभी हाँ करंट देखने को सही नहीं है, चार्ट चौपी चौपी चार्ट्स है। अजीब सा इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस को अभी रिकवर करने आएगा ना हाँ मार्केट। ये इम्बैलेंस ये देखो, यहाँ ये पे इम्बैलेंस बना है भाई, है। देखो मैं तुम्हें इम्बैलेंस दिखाऊं, ये इम्बैलेंस ये है। एक तो ये इम्बैलेंस पड़ा है, ठीक है। जब और तुम्हारा ये इम्बैलेंस पड़ा इम्बैलेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? है। इम्बैलेंस देखो क्यों यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें इम्बैलेंस को ना, डिटेक्ट? ये देखो ये जो इनके बीच में देखो कोई ना कोई विकाई है ना कुछ और आया है, ये इम्बैलेंस है। अब इसको तो इसने कवर कर दिया, ये ग्रीन कैंडल को इस वाली वीक ने कवर कर दिया, मतलब नीचे आके, मतलब जितने भी यहाँ पे जो जिनको बाय का मौका नहीं मिला था उनको बाय का मौका मिल गया। अब इस जगह पे ना बायर्स मौका नहीं मिल पाया उनको, तो ये गैप फिल करने आता है मार्केट। अच्छा एक बात साहिल बता। भाई तुम्हें है ना और क्लियर कब समझा आएगा? सकते हैं इसके बारे में, इम्बैलेंस के बारे में। कब गोल्ड आएगा ओए, गोल्डी। एक बात बता, ये जो इम्बैलेंस है इसको ट्रेड कैसे करें? इसको ट्रेड अंगुली से करना पड़ता है भाई, तुम्हारा MT4 में MT5 में। ये यहाँ से बाय कैसे लगाए बता। यहाँ से बाय कैसे लगाएगा देख, ये मेरा डिमांड हो गया, ठीक है, सिंपल। ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये मतलब ये बेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, ये मेरे को इम्बैलेंस दिखा नीचे कि भाई हाँ इम्बैलेंस, मेरे पास नहीं कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। वो ओए 1 मिनट बच्चे, ओए कोई ओए, बैल बजा रहा है, ये 1 मिनट मैं गेट खोल के आता हूँ, 1 मिनट, अरे कोई और पेयर दिखा दो इसे। 1 मिनट होल्ड करना। मेरे को ये बताओ, ये चलो मार्केट हुआ ही नहीं, मान लो मार्केट करंट वहाँ है, हाँ तो मुझे यहाँ पे बाय कैसे मारने को मिलेगा? मेरे को ये बताओ, मेरे को ये ट्रेड करना है 700 से इम्बैलेंस। हाँ बोल गोल्डी। मेरे को ये ये देखो, इम्बैलेंस ट्रेड करना है मेरे को। अरे अभी उसके इम्बैलेंस नहीं होता भाई ट्रेड ऐसे, समझा, दिमाग मत लगा ज्यादा। मेरे को करना है। हाँ, तो कर फिर। आया समझ आया। अरे कहाँ है? मेरे को ये बताओ, मेरे को यहाँ पे बाय कैसे मिलेगी? ये साहिल बताओ बताएगा। मेरे को अरे बाय। भाई सेम जो ये जहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है। ये देखो ना, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, ठीक है। और इस जगह पे तुम्हारा अपना सप्लाई लेवल है। बाय है। हाँ तो सप्लाई लेवल पे आया, ये और देखो नीचे तुम्हारी तुम्हारी लिक्विडिटी है, तो ये सोचो कि यहाँ तक तो तुम टीपी रखना है, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा इधर, है ना अरे साहिल भाई? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि देखो ये इस जगह पे फ्लड हो इम्बैलेंस रहा था है। मार्केट, और यहाँ पे ये सप्लाई था, मार्केट ने इम्बैलेंस को कवर अप करा, कवर अप करने के बाद में गया यहाँ पे, तुम्हें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला होगा, और फिर उसके बाद में तुमने सेल कर दिया, तो ये तुम्हें मूव मिल गया। गोल्डी ऐसे होता है भाई इम्बैलेंस ट्रेड, समझा? अरे गोल्डी कौन है? ये कौन सा गोल्डी? अपना गोल्डी है ये, अपना गोल्डी। इसको आता तो है सारा। ये बकवास कर रहा है। नाम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नील ब्राउन। अच्छा ये गोल्डी है। हाँ मुझे लगा शायद नील ब्रदर है, भोसले नागेश्वर। नागेश्वर नहीं है ये, वो वाली आईडी दी थी ना, वो खरीदी अपने को लाइसेंस वाली, ओके ओके। वो वाली है ये। तो अब ये यूरोएसडी नीचे आएगा ना फिल करने को हाँ भाई इम्बैलेंस? आएगा, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ आएगा जरूर, अभी नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पर आएगा जरूर वो। अच्छा अच्छा, गैप कितना फिल आए कर, फिर? जैसे अगर कहें तो कितना नीचे तक आएगा? यहाँ से जहाँ उठ तक जाएगा ये। हाँ नहीं साहिल भाई मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि ये और आएगा, ये इम्बैलेंस भरा पड़ा है साहिल भाई, ये नीचे डिमांड है, इसको टेस्ट आएगा, करने आएगा। रुको अभी दो, नेक्स्ट बताता हूँ।
ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। जे रिएक्ट करेगा पक्का वाला, क्योंकि यहाँ पे भी बीओएस है। बीओएस है, बिल्कुल ये है। ये पर मेरे को पता मोमेंटम है। चांसेस क्या लगता है साहिल भाई, ये यहाँ पे शायद करना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये एसएल हिट करेगा लोगों के, क्योंकि ये इम्बैलेंस ये फील करता है, क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस फील करना पड़ता है उसको। अगर इम्बैलेंस फील नहीं है तो वो या तो फिर वो खाएगा उसको, या तो वो नीचे जाएगा। भाई इम्बैलेंस को ज्यादा ना देखा करो, इम्बैलेंस कई इस तरह के भी होते हैं जो एक एक साल बाद भी फिल होते हैं। अच्छा, जो मार्केट दिखा रही है पहले वो भी देखो ना, कहाँ गए सारे? यही है, कहीं नहीं गए। जरूरी नहीं होता इम्बैलेंस अभी फिल होगा, इम्बैलेंस का कोई पता नहीं होता कब फिल होगा। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है बस वो देखो कि हाँ भाई यहाँ से उठ सकता है ये, बस बात खत्म। हाँ समझ गए। अभी मुझे ये दिख रहा है कि ये नीचे वाले लेवल की मे भी इक्विटी खाए उसके बाद उठे, पर ये ड्यू टू दिस यूएस, अरे कहाँ गया, हाँ ये बीयूएस के कारण और मोमेंटम के कारण मुझे लग रहा है कि यही कहीं से उठ सकता है और यही कहीं से फिर से गिर जाएगा। हाँ, फिर वहां से गिरने के बाद में फिर ये नीचे वाले भी डिमांड पे जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो ये भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और साहिल भाई जो मैक्रो स्ट्रक्चर है ना वो सेल में ही है, सेल में बता रहा है, मैक्रो स्ट्रक्चर सेल ही है जो हाँ, अपन सेल है। वीकली देखेंगे और मंथली देखेंगे तो। H4 सेल है, मैंने देख लिया था पहले ही। हाँ, पर वो हमें सेल। देखनी है ट्रेड, ना कि हमें लगे रहना है देखने के लिए, अपना एक एक वीक की वेट के लिए थोड़ी देखना है हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्रदर्स किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं फिर मैं बंद करूँ सेशन। गोल्डी तेरे को कोई डाउट है क्या? हाँ ब्रो, ये क्या कहते हैं, क्या चीज है ये ब्रदर क्या नाम है, ये पिज्जा बनाने की मार्केट, मशीन है। ये मार्केट है। अच्छा 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 अच्छा। और ये डब्बे क्या है ये? कौन से डब्बे? ये देसी घी है खाने के लिए। अच्छा डालडा अच्छा, घी के डब्बे। डालडा है क्या? डालडा है? देसी हाँ देसी ये। अच्छा अच्छा। एक ये हो गया, तो मुंबई पे जाते हैं ना, पैक होके जाता है दोपहर वाला। इसको खाने ठीक के बाद हवा टाइट हो जाएगी। है। लूज मोशन हो जाएंगे। जी जी जी। हाँ। अच्छा, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है ये मार्केट? ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। खेल तो है, सुबह सो खेल के रहा उठता है तो ऊपर नहीं होता क्या? हैं? जब तू सुबह सो के एक्सरसाइज, उठता है। अरे भाई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम लगा रहा है, है। हाँ। उसको भी बॉडी बनानी है अपनी। हाँ बॉडी बनानी है उसको भी।